کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کے صرف چند سالوں میں کروڑپتی بن جاتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں، خوابوں کے گھر اور گاڑیاں خریدتے ہیں، اور کچھ لوگ ساری زندگی محنت کر کے بھی بس گزارا ہی کرتے رہ جاتے ہیں؟ کیوں ایک ہی دنیا میں ایک جیسے مواقع ہونے کے باوجود کچھ لوگ مالی آزادی پا لیتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگ وقت اور پیسے کی دوڑ میں پھنسے رہتے ہیں؟ ایم جے ڈی مارکو کی یہ کتاب دی ملینئر فاسٹ لین آپ کے ذہن کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ امیری صرف قسمت یا لاٹری کا کھیل نہیں، اور نہ ہی یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپے کا خواب ہے، بلکہ ایک راستہ ہے، ایک ایسا روڈ میپ جو اگر آپ نے صحیح وقت پر اختیار کر لیا تو آپ چند سالوں میں وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے عام لوگ پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو 3 راستوں سے روشناس کراتی ہے: سائیڈ واک، سلو لین اور فاسٹ لین۔ پہلا راستہ آپ کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا آپ کو اوس درجے کی زندگی دیتا ہے، اور تیسرا راستہ فاسٹ لین وہ شاہراہ ہے جو کم وقت میں آپ کو دولت، آزادی اور اپنی مرضی کی زندگی فراہم کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، آپ کون سا راستہ چنیں گے؟ کیا آپ بھیڑ کے ساتھ چلتے رہیں گے یا اپنی زندگی کی رفتار بدل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں گے؟ اس کتاب کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب ہم ان حصوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1، ویلتھ ان ویل چیئر، گیٹ رچ سلو از گیٹ رچ اولڈ۔ کتاب کے آغاز میں ایم جے ڈی مارکو ہمیں ایک ایسے خواب سے جگاتے ہیں جس میں ہم برسوں سے سو رہے ہیں۔ ہمیں بچپن سے رٹایا جاتا ہے، پڑھو، اچھی نوکری حاصل کرو، محنت کرو اور تھوڑا تھوڑا پیسہ بچاؤ، ریٹائرمنٹ فنڈ میں ڈالو اور بڑھاپے میں آرام سے زندگی گزارو۔ سننے میں یہ مشورہ بہت محفوظ اور عقل مندانہ لگتا ہے، لیکن ڈی مارکو کہتے ہیں یہ دراصل سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا جال جس میں زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، گریٹ ڈسیپشن، اسے وہ عظیم دھوکہ کہتے ہیں۔ ڈی مارکو کہتے ہیں یہ دھوکہ دراصل سوسائٹی کا وہ بیانیہ ہے جو ہر جگہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اسکول میں، والدین سے، میڈیا پر، سب ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ نوکری سب کچھ ہے۔ اگر آپ ڈگری لے لو، اچھی کمپنی میں جاب کر لو، ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچاتے رہو تو آپ آخر کار خوشحال ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ حقیقت سامنے رکھتے ہیں، یہ سب ایک فریب ہے۔ اس راستے پر چل کر آپ کو صرف محدود آزادی ملتی ہے۔ ہاں، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن جب آپ اسے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ راستہ ہمیں معمولی زندگی دیتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں آپ محنت تو کرتے ہیں مگر کبھی آزاد نہیں ہوتے۔ ڈی مارکو اپنی ذاتی کہانی سناتے ہیں، وہ بھی بالکل ہم سب کی طرح اسی دھوکے میں مبتلا تھے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ڈگری اور نوکری ہی کامیابی کا راستہ ہے، پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ راستہ غلامی کا راستہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہمت دکھائی، ایک بزنس سٹارٹ کیا، ایک لیموزین سروس۔ شروع میں یہ چھوٹا سا کام تھا، لیکن انہوں نے اسے ایک ایسا سسٹم بنایا جو ان کی غیر موجودگی میں بھی چلتا تھا۔ وہ اس سروس کے مالک بن گئے، صرف مزدور نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں اصل راز کا پتہ چلا۔ امیری تب آتی ہے جب آپ اپنی آمدنی کو اپنے وقت سے آزاد کر دیتے ہیں۔ نوکری میں آپ وقت کے بدلے پیسے کماتے ہیں، لیکن بزنس میں آپ سسٹمز، پروڈکٹس اور ویلیو کے بدلے پیسے کماتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کی موجودگی کے بغیر بھی چلتی رہتی ہیں۔ ڈی مارکو کہتے ہیں کہ آہستہ امیر بننے کا مطلب ہے بڑھاپے میں امیر ہونا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کامیابی کا فارمولہ نہیں بلکہ ایک ناکامی کا فارمولہ ہے، کیونکہ جوانی وہ وقت ہے جب آپ کے پاس خواب پورے کرنے کی توانائی ہوتی ہے، جب آپ سفر کر سکتے ہیں، نئے تجربے کر سکتے ہیں، دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس دولت تب آئے جب آپ صحت اور وقت کھو چکے ہوں تو اس کا کیا فائدہ؟ لہٰذا اگر آپ صرف نوکری اور بچت پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ ایک ایسے راستے پر ہیں جہاں آزادی شاید کبھی نہ ملے۔ آپ کی زندگی صرف بلوں، قرضوں اور ریٹائرمنٹ کے انتظار میں گزر جائے گی۔ ڈی مارکو ہمیں جھنجھوڑ کر یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو دولت چاہیے، اگر آپ کو آزادی چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب بھی پورے ہوں، تو آپ کو اپنی زندگی کو فاسٹ لین پر ڈالنا ہوگا۔ پارٹ 2، ویلتھ از ناٹ اے روڈ بٹ اے روڈ ٹرپ۔ ایم جے ڈی مارکو کہتے ہیں کہ دولت کو اکثر لوگ ایک منزل سمجھتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک خاص رقم بینک میں جمع کر لیں
या रिटायरमेंट फंड बड़ा हो जाए या एक दिन लॉटरी लग जाए तो वो अचानक अमीर और आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि दौलत किसी एक मकाम का नाम नहीं, बल्कि एक मुसलसल सफ़र है, एक ऐसा रोड ट्रिप जहां आपकी सोच, आपके फ़ैसले और आपके अमाल ये तय करेंगे कि आप कहां पहुंचेंगे। इस हिस्से में वो एक ताकतवर मिसाल देते हैं। ज़िंदगी एक रोड ट्रिप है। जैसे जब आप किसी तवील सफ़र पर निकलते हैं, आपको सबसे पहले एक रोड मैप चाहिए होता है ताकि पता हो कि जाना कहाँ है, कौन सा रास्ता लेना है, कहाँ रुकना है और कहाँ से बचना है। बिल्कुल इसी तरह दौलत हासिल करने के लिए भी एक वाज़ेह नक्शा दरकार है। अगर आपके पास मैप ही नहीं तो आप कहाँ पहुँचेंगे? शायद आप भटकते रहें, वक्त ज़ाया करें और कभी मंजिल तक ना पहुँच सकें। यहाँ डिमार्को 3 मुख्तलिफ रोड मैप्स मुतारिफ करवाते हैं, यानी दौलत हासिल करने के 3 रास्ते, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। ये 3 रास्ते पूरी किताब की बुनियाद हैं। पहला रास्ता साइड वॉक। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल बगैर मंसूबे के ज़िंदगी गुजारते हैं। जो भी कमाया वही खर्च कर दिया, कल का कोई प्लान नहीं और ना कोई बचत। आज मज़े करो, कल की फ़िक्र मत करो। ये रास्ता सबसे ख़तरनाक है क्योंकि आखिर में ये लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं, कर्ज़ों में डूब जाते हैं या दूसरों पे इन्हिसार करते हैं। डिमार्को कहते हैं कि साइड वॉक पर चलने वाला शख्स हमेशा गुलाम रहता है क्योंकि इसका मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर हादसात और दूसरों के रहमो करम पर होता है। दूसरा रास्ता स्लो लेन। ये वो लोग हैं जो ज़रा समझदार नज़र आते हैं। ये लोग नौकरी करते हैं, थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं। ये सोचते हैं कि 40-50 साल की मेहनत के बाद एक दिन वो आज़ाद हो जाएंगे। ये रास्ता बिज़ाहिर महफूज लगता है, लेकिन असल में ये भी एक धोखा है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया वक्त कुर्बान कर रहे होते हैं। आप जवानी के ख्वाबों को तर्क कर देते हैं इस उम्मीद पर कि बढ़ापे में दौलत आज़ादी देगी। लेकिन बढ़ापे में आज़ादी का क्या फ़ायदा जब आपके पास सेहत, ताकत और ख्वाहिशें बाकी ही ना रहें। तीसरा रास्ता फास्ट लेन। ये वो रास्ता है जो सिर्फ चंद लोग चुनते हैं। ये वो लोग हैं जो बिज़नेस और सिस्टम्स के ज़रिए अपनी आमदनी को वक्त से आज़ाद करते हैं। ये लोग वैल्यू पैदा करते हैं, मसाइल हल करते हैं, बड़े पैमाने पर दूसरों की खिदमत करते हैं। इनकी मेहनत सिर्फ चंद सालों में इतने बड़े नताइज देती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ाद और खुशहाल गुजार सकते हैं। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं, ना कि हालात के रहमो करम पर छोड़ते हैं। डिमार्को कहते हैं कि ये तीनों रास्ते ज़िंदगी के बड़े बड़े हाईवेज़ की तरह हैं। हर कोई किसी न किसी हाईवे पर है, चाहे इसे मालूम हो या ना हो। सवाल ये है कि आप किस हाईवे पर हैं। क्या आप साइड वॉक पर हैं जहां पैसा आते ही ख़त्म हो जाता है, या स्लो लेन पर हैं जहां आप अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करके बढ़ापे का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप फास्ट लेन पर हैं जहां चंद सालों की स्मार्ट मेहनत से आप बाकी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस हिस्से में डिमार्को हमें एक ज़बरदस्त सबक देते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को एक रोड ट्रिप समझ लिया तो आपके फ़ैसले बदल जाएंगे, क्योंकि फिर आपको एहसास होगा कि आपका हर कदम, हर मोड़ और हर इंतखाब आपको मंजिल के करीब या दूर कर रहा है। मंजिल सिर्फ अमीर होना नहीं है, बल्कि असल में वो आज़ादी है जो आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने देती है। पार्ट 3 द मोस्ट ट्रेवल्ड, द साइड वॉक। एमजे डिमार्को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ जिस रास्ते पर है वो है साइड वॉक। ये वो लोग हैं जो बगैर किसी मंसूबे के ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके पास ना कोई माली मंसूबा होता है, ना बचत की आदत, ना सरमायाकारी का विजन। जो भी पैसा आता है वो फ़ौरन खर्च कर देते हैं। अगर सैलरी मिली है तो वो नई चीज़ें खरीद लेंगे, पार्टी कर लेंगे, किस्तें भर देंगे या कोई नया गैजेट उठा लाएंगे। ये लोग आज का मज़ा कल की कीमत पर खरीदते हैं। डिमार्को कहते हैं कि साइड वॉक पर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हमेशा खाई के किनारे पर चलते हैं। ज़रा सा झटका लगा और ये लोग मुकम्मल तौर पर गिर जाते हैं। अगर इनकी नौकरी ख़त्म हो जाए, अगर बीमारी आ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये माली तौर पर टूट जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई बैकअप, कोई प्लान बी, कोई बचत मौजूद नहीं होती। ये लोग अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर किस्मत, हालात और दूसरों पर छोड़ देते हैं। साइड वॉक पर रहने वालों का माइंडसेट भी खतरनाक होता है। वो अक्सर सोचते हैं कि एक दिन किस्मत बदलेगी, लॉटरी लगेगी, कोई चमकता हुआ मौका मिलेगा और अचानक अमीर हो जाएंगे। लेकिन डिमार्को बताते हैं किस्मत पर भरोसा करना दरअसल जिम्मेदारी से भागने का दूसरा नाम है। जो शख्स अपने मुस्तकबिल को लॉटरी या मुआवजे के साथ जोड़ता है वो कभी हकीकत में माली आज़ादी नहीं पा सकता।
साइड वॉक पर रहने वाले लोगों की एक और आदत है दिखावा। वो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद कर दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अमीर हैं। महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, शानदार मोबाइल फ़ोन, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब चीज़ें कर्जे या तनख्वाह के पैसों से खरीदी जाती हैं। ये दौलत नहीं बल्कि सिर्फ दौलत का ढोंग है। डिमार्को इसे प्रिटेंट वेल्थ कहते हैं, यानी वो दौलत जो सिर्फ बाहर से नज़र आती है लेकिन अंदर से खोखली होती है। सबसे बड़ा मसला ये है कि साइड वॉक पर चलने वाला शख्स कभी आज़ादी हासिल नहीं करता। इसकी ज़िंदगी हमेशा हालात के रहमो करम पर होती है। वो आज खुश हो सकता है लेकिन कल ज़रा सा झटका लगा तो सब कुछ बिखर जाता है। वो हमेशा कर्ज, तनख्वाह या दूसरों के सहारे पर जीता है। इसकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम नहीं होता और ना ही मुस्तकबिल की कोई सिमत। पार्ट 4, मीडियोक्रिटी, द स्लो लेन रोड मैप। एमजे डिमार्को इस हिस्से में बताते हैं कि अगरचे साइड वॉक सबसे खतरनाक रास्ता है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर समझदार लोग स्लो लेन पर चलते हैं। स्लो लेन बेज़ाहिर महफूज दिखाई देता है, लेकिन असल में मीडियोक्रेसी यानी औसत दर्जे की ज़िंदगी की ज़मानत है। ये वो रास्ता है जहाँ आप सारी उम्र मेहनत करते हैं, थोड़ा थोड़ा बचाते हैं और फिर आखिरकार बुढ़ापे में कुछ सुकून पाते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ गुजर चुका होता है। स्लो लेन पर रहने वाले लोग अपने आप को होशियार समझते हैं। वो कर्ज़ों से बचते हैं, अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत में डालते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स में सरमायाकारी करते हैं और तवील मुद्दती प्लानिंग पर यकीन रखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो 30 या 40 साल तक सब्र से ये अमल जारी रखेंगे तो आखिरकार रिटायरमेंट के बाद खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन डिमार्को इस सोच को एक धोखा करार देते हैं। इनके मुताबिक ये वो रास्ता है जो बेज़ाहिर अक्लमंदाना लगता है, लेकिन असल में ये आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया यानी वक्त आपसे छीन लेता है। ज़रा सोचें, आप अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ताकत और अपनी बेहतरीन उम्र इस उम्मीद पर कुर्बान कर देते हैं कि बुढ़ापे में आप दौलत के मज़े लेंगे, लेकिन क्या बुढ़ापे में वही ख्वाहिशें रहेंगी? क्या आपके पास वही तवानाई होगी? क्या आप दुनिया घूम सकेंगे, नए ख्वाब पूरे कर सकेंगे या वो सब कुछ कर सकेंगे जो जवानी में मुमकिन होता है? नहीं। उस वक़्त शायद आपके पास पैसा होगा, लेकिन सेहत और वक्त ख़त्म हो चुका होगा। डिमार्को इसे वेल्थ इन व्हील चेयर की एक और शक्ल कहते हैं। स्लो लेन पर ज़िंदगी गुजारने वालों का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनकी आमदनी हमेशा बराह रास्त उनके वक्त के साथ जुड़ी रहती है। चाहे वो जितना मर्जी बचत करें या इन्वेस्टमेंट करें, वो फिर भी अपनी सैलरी पर डिपेंड करते हैं। एक जॉब का खो जाना, मेशियत की गिरावट या कोई हादसा इनके पूरे मंसूबे बर्बाद कर सकता है। यानी स्लो लेन पर भी आज़ादी नहीं मिलती, बस गुलामी की एक महज़िब शक्ल मिलती है। डिमार्को एक और नुक्ता उठाते हैं। स्लो लेन पर रहने वाले लोग ये समझते हैं कि रियाजी उनके हक में है। वो सोचते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या म्यूचुअल फंड्स इन्हें अमीर बना देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब हिसाब किताब सिर्फ उस सूरत में फ़ायदा मंद है जब आपके पास वक्त दहाइयों का हो। अगर आप जवानी में आज़ादी चाहते हैं तो ये रास्ता बिल्कुल नकारा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू तब ही काम आता है जब आप 70 या 80 साल के हो चुके होंगे, लेकिन तब तक ज़िंदगी के असल मौके गुजर चुके होते हैं। इस हिस्से में डिमार्को ये भी बताते हैं कि स्लो लेन पर रहने वाला शख्स अक्सर अपने आप को महफूज महसूस करता है, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है। इसके पास नौकरी है, बचत है, लेकिन ये सब कुछ भी हालात की एक हल्की सी लहर से डूब सकता है। वो मिसाल देते हैं कि 2008 के माशी बहरान में लाखों लोग अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स से महरूम हो गए। दहाइयों की मेहनत चंद महीनों में मिट्टी हो गई। ये है स्लो लेन की हकीकत। पार्ट 5, द फास्ट लेन रोड मैप। डिमार्को इस हिस्से में सबसे पहले ये हकीकत वाज़िया करते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन लोग, चाहे वो बिल गेट्स हों, स्टीव जॉब्स या एलन मस्क, इन सब की दौलत का राज नौकरी या स्लो लेन नहीं बल्कि फास्ट लेन है। फास्ट लेन वो रास्ता है जहां आप अपना वक्त पैसों के साथ नहीं बेचते, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके बगैर भी चलता है और मुसलसल वैल्यू पैदा करता है। यही सिस्टम आपको हकीकी आज़ादी देता है। डिमार्को बताते हैं कि फ़ास्ट लेन पर चलने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। यहाँ कामयाबी की बुनियाद है कि आप अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ना गुजारें, बल्कि दूसरों के मसाइल हल करें। जितना बड़ा मसला आप हल करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी आप बेहतर बनाएंगे, इतनी ही ज़्यादा दौलत आपकी तरफ आएगी। यानी दौलत का फार्मूला है वेल्थ इज़ इक्वल टू वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, तो पहले ये सोचें आप लाखों लोगों की ज़िंदगी में क्या बेहतरी ला सकते हैं।
फास्ट लेन पर कामयाबी के लिए डिमार्को 5 कवानीन देते हैं जिन्हें वो कमांडमेंट्स ऑफ फास्ट लेन कहते हैं। नंबर 1, नीड। आपका बिजनेस किसी हकीकी ज़रूरत या मसले को हल करे। अगर आप लोगों के मसाइल हल नहीं करते तो आप कभी भी बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 2, एंट्री। ऐसा बिजनेस बनाएं जिसमें दाखिल होना आसान ना हो। अगर कोई भी कल सुबह उठकर वही बिजनेस बना सकता है तो आपके पास कोई पायदार बर्तरी नहीं है। नंबर 3, कंट्रोल। अपने सिस्टम पर कंट्रोल रखें। अगर आपका बिजनेस मुकम्मल तौर पर दूसरों पर इन्हिसार करता है तो ये एक खतरा है। नंबर 4, स्केल। आपका मॉडल ऐसा होना चाहिए जो बड़े पैमाने पर फैल सके। अगर आप सिर्फ चंद क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं तो आप महदूद हैं, लेकिन अगर आप लाखों तक पहुंच सकते हैं तो दौलत की कोई हद नहीं। नंबर 5, टाइम। आपको अपने वक्त को अलग करना होगा। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपकी मौजूदगी से चलता है तो ये नौकरी की एक शक्ल है। असल फास्ट लेन वो है जहां सिस्टम आपके बगैर भी पैसा बनाता रहे। ये 5 असूल फास्ट लेन का मरकज़ी ढांचा है। डिमार्को बार बार ये दोहराते हैं कि फास्ट लेन आसान नहीं है, इसमें मेहनत, कुर्बानी और रिस्क शामिल है। लेकिन ये रिस्क अंधाधुंध नहीं होता बल्कि कंट्रोल्ड और स्मार्ट रिस्क होता है। इस रास्ते पर आप 40-50 साल नहीं बल्कि चंद साल में वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जिसका ख्वाब स्लो लेन वाले पूरी ज़िंदगी देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि फास्ट लेन सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं बल्कि आज़ादी पैदा करने का रास्ता है। आज़ादी किस चीज़ से? आज़ादी वक्त की ग़ुलामी से, आज़ादी नौकरी की कैद से, आज़ादी माशी गैर यकीनी से। जब आपका बिजनेस या सिस्टम आपके लिए काम करता है तो आपके पास इख्तियार होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिएं, सफ़र करें, अपने शौक़ पूरे करें या दुनिया को कुछ वापस दें। यही वो आज़ादी है जिसे डिमार्को असल दौलत कहते हैं। इस हिस्से में वो ये भी बताते हैं कि फ़ास्ट लेन पर आने के लिए सबसे पहला कदम सिर्फ फ़ैसला है। आपको ये मानना होगा कि आप नौकरी या स्लो लेन के ज़रिए कभी गैर मामूली ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे। आपको अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करनी होगी कि आप अलग सोचें, अलग कदम उठाएं और दूसरों की भीड़ से निकलें। पार्ट 6, योर व्हीकल टू वेल्थ। एमजे डिमार्को इस हिस्से में सबसे पहले ये बताते हैं कि फास्ट लेन की सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। कोई बिजनेस मॉडल, कोई सिस्टम या कोई मौका तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके अंदर जज्बा, हौसला और इल्म मौजूद ना हो। वो कहते हैं कि हर कामयाब फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर की सबसे पहली और अहम सरमायाकारी खुद पर करना है। आपकी महारतें, आपका तजुर्बा और आपका माइंडसेट आपके लिए हकीकी गाड़ी की तरह काम करते हैं जो आपको अमीरी की मंजिल तक ले जाएगा। डिमार्को वाज़िया करते हैं कि फ़ास्ट लेन में कामयाबी के लिए सिर्फ आइडियाज़ काफ़ी नहीं। हज़ारों लोग रोज़ाना नए आइडियाज़ सोचते हैं मगर ज़्यादातर नाकाम हो जाते हैं। फ़र्क ये है कि कामयाब लोग अपने आप को एक व्हीकल में तब्दील कर लेते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने इल्म, तजर्बात, ताल्लुकात और सलाहियतों को एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो वैल्यू पैदा करे और वक्त के साथ बढ़ता जाए। ये वो सरमायाकारी है जो आपको कभी पीछे नहीं छोड़ती। यहाँ वो 3 अहम खसूसियात बताते हैं जो हर फास्ट लेन शख्स में होनी चाहिए। नंबर 1, महारत। आपको वो काम सीखना होगा जिसमें आप बेहतरीन हो या बेहतरीन बन सकते हो। ये महारत आपको दूसरों से अलग करती है और बिजनेस में पायदार कामयाबी देती है। नंबर 2, कंट्रोल। आपको अपने फैसले और अपने बिजनेस पर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे तो कामयाबी खतरे में रहेगी। नंबर 3, हौसला और लगन। बगैर जज्बे के कोई बिजनेस या सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा। जो लोग महज मौके की तलाश में हैं वो अक्सर नाकाम रह जाते हैं। हौसला और मुस्तकिल लगन वो ताकत है जो फास्ट लेन पर आगे बढ़ने में मदद देती है। डिमार्को इस हिस्से में वाज़िया करते हैं कि फास्ट लेन के लिए सिर्फ मौका तलाश करना काफ़ी नहीं। जब आपकी इल्म, महारत और लगन मजबूत हो तब ही वो सिस्टम आप बना सकते हैं जो आपके बगैर भी काम करे और मुसलसल आमदनी पैदा करे। पार्ट 7, द रोड्स टू वेल्थ। एमजे डिमार्को इस हिस्से में वाज़िया करते हैं कि फ़ास्ट लेन पर पहुंचने के कई रास्ते हैं लेकिन सबका मकसद एक ही है, वक्त और आज़ादी से आज़ाद आमदनी पैदा करना। ज़्यादातर लोग सिर्फ नौकरी या महदूद सरमायाकारी के रास्ते देखते हैं लेकिन फ़ास्ट लेन के लिए ज़रूरी है कि आप वसी और बुलंद नज़रिया इख्तियार करें। दौलत हासिल करने के लिए रास्ते हमेशा वैल्यू फ्राहम करने, मसाइल हल करने और बड़े पैमाने पर असर डालने पर मबनी होने चाहिए। डिमार्को बताते हैं कि हकीकी फ़ास्ट लेन में 3 बुनियादी रास्ते हैं: बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज।
یہ تینوں وہ راستے ہیں جہاں آپ اپنے سسٹم اور ویلیو کے ذریعے مسلسل آمدنی پیدا کر سکتے ہیں۔ بزنس میں آپ اپنی کمپنی یا برانڈ بنا کر لاکھوں لوگوں کو خدمات یا مصنوعات فراہم کرتے ہیں۔ پروڈکٹ میں آپ ایک ایسا حل بناتے ہیں جو لوگوں کی زندگی آسان بنائے، جیسے کوئی ایپ، کتاب یا ٹیکنالوجی سروس۔ آپ اپنی مہارت استعمال کر کے بڑے پیمانے پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم آپ کی غیر موجودگی میں بھی چل سکے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ فاسٹ لین کے راستے پر کامیابی صرف موقع کی تلاش سے نہیں آتی، بلکہ لیوریج پیدا کرنے سے آتی ہے۔ لیوریج کا مطلب ہے آپ کا کام وقت کے ساتھ بڑھتا جائے، آپ کے بغیر بھی کام کرے اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنی ایک ایپ بناتے ہیں اور لاکھوں لوگ اسے استعمال کرتے ہیں تو ہر نئے صارف سے آپ کی آمدنی بڑھتی ہے، لیکن آپ کو ہر وقت ہر صارف کو وقت نہیں دینا پڑتا۔ یہی وہ جادو ہے جو سلو لین اور سائیڈ واک میں ممکن نہیں۔ ڈی مارکو اس حصے میں بتاتے ہیں کہ فاسٹ لین کا ایک اور راز ریچنس اینڈ کمپاؤنڈنگ نہیں بلکہ ویلیو اینڈ اسکیلنگ ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ صرف بچت اور سرمایہ کاری سے کروڑ پتی بن سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے آپ جتنا زیادہ لوگوں کی زندگی بہتر بنائیں گے اتنی ہی آپ کو دولت ملے گی۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو کم وقت میں زیادہ آزادی دیتا ہے اور یہ مستقل ہے کیونکہ یہ دوسروں کے فائدے پر مبنی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ فاسٹ لین پر چلنے والے لوگوں کا سب سے بڑا اثاثہ آپ کا نظام، آپ کی مہارت اور آپ کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تینوں عناصر مل کر آپ کو وہ طاقت دیتے ہیں جو نوکری یا سلو لین میں کبھی نہیں مل سکتی۔ پارٹ 8 یور اسپیڈ ایکسلریٹ ویلتھ۔ ایم جے ڈی مارکو اس حصے میں اہم بات کرتے ہیں۔ صرف راستے کا جاننا کافی نہیں، اصل طاقت رفتار میں ہے۔ وہ کہتے ہیں فاسٹ لین پر پہنچنے والے لوگ صرف موقع تلاش نہیں کرتے بلکہ اپنی رفتار بڑھا کر ہر قدم کو زیادہ مؤثر بناتے ہیں۔ رفتار کا مطلب ہے آپ اپنے فیصلوں، عمل اور سسٹمز کو اتنی تیزی سے اور مؤثر طریقے سے آگے بڑھائیں کہ ہر لمحہ آپ کی دولت اور آزادی میں اضافہ کرے۔ ڈی مارکو واضح کرتے ہیں کہ فاسٹ لین کا سب سے بڑا فرق یہ ہے آپ اپنے وقت کو دوسروں کی مدد اور سسٹم کے ذریعے بڑھاتے ہیں۔ نوکری میں آپ صرف وقت بیچتے ہیں، سلو لین میں آپ آہستہ آہستہ پیسے جمع کرتے ہیں، لیکن فاسٹ لین میں آپ کے سسٹم، بزنس یا مصنوعات آپ کے بغیر بھی پیسے بناتے ہیں۔ اس حصے میں وہ بتاتے ہیں کہ اصل فاسٹ لینرز ہمیشہ اپنے اقدامات کی رفتار بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ویلیو، اثر اور آمدنی مسلسل بڑھتی رہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ رفتار حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: آٹومیشن، ڈیلیگیشن اینڈ لیوریج۔ آٹومیشن کا مطلب ہے وہ کام جو بار بار ہوتے ہیں خود کار ہو جائیں، جیسے ایپ یا آن لائن سسٹم جو آپ کے بغیر بھی چلیں۔ ڈیلیگیشن کا مطلب ہے دوسروں کو ذمہ داری دینا تاکہ آپ کا وقت اہم کاموں پر صرف ہو۔ لیوریج یعنی ایسے وسائل یا نظام استعمال کرنا جو آپ کی محنت کو کئی گنا بڑھا دیں، جیسے ٹیکنالوجی، ٹیم یا بڑے نیٹ ورک۔ ڈی مارکو بتاتے ہیں کہ رفتار کا دوسرا پہلو مائنڈ سیٹ ہے۔ فاسٹ لین پر چلنے والے لوگ جلدی ہمت نہیں ہارتے، وہ ناکامی کو عارضی سمجھ کر سیکھتے ہیں اور ہر تجربے سے اپنی حکمت عملی بہتر کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے مسائل پر وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ بڑے ویژن پر فوکس کرتے ہیں۔ یہی رویہ انہیں دوسرے لوگوں سے آگے لے جاتا ہے اور کم وقت میں زیادہ نتائج دیتا ہے۔ اس حصے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ فاسٹ لین صرف راستہ یا سسٹم نہیں بلکہ یہ رفتار اور عمل کا فلسفہ ہے۔ اگر آپ اپنے اقدامات کی رفتار بڑھائیں، سسٹمز اور ٹیم کا صحیح استعمال کریں اور مسلسل ویلیو پیدا کریں تو آپ چند سالوں میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے سلو لین والے پوری زندگی محنت کرتے ہیں۔ یہی فاسٹ لین کا راز ہے، کم وقت میں زیادہ آزادی، زیادہ دولت اور حقیقی زندگی جینے کی طاقت۔ لہٰذا یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اصل دولت اور آزادی حاصل کرنے کا راز فاسٹ لین میں ہے۔ فاسٹ لین صرف بزنس یا سرمایہ کاری کا راستہ نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ ہے جس میں آپ کا ذہن، آپ کے فیصلے، آپ کا عمل اور آپ کا سسٹم سب شامل ہے۔ یہ راستہ کم وقت میں زیادہ نتائج دیتا ہے کیونکہ یہ آپ کی محنت کو بڑے پیمانے پر ویلیو اور اثر میں بدل دیتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دولت اور آزادی صرف قسمت، لاٹری یا آہستہ آہستہ جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ آپ کے سوچنے، کرنے اور بڑھانے کی طاقت سے آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو سب سے پہلے خود پر سرمایہ کاری کریں، اپنے مہارت اور علم کو بڑھائیں، اپنے فیصلوں پر مکمل کنٹرول حاصل کریں۔ دوستو، اس کتاب کی اگر آپ کو سمری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔